Good morning everyone. Welcome to the lecture of TRCS. We are studying overhead circular tank, and we have started one example of overhead circular tank. In this example we have find design constraint, and also we have design a top down. Now let's start with the design of a top ring beam. So here our D is a 12 meter. Meridian thrust per meter length of the beam at base is a T1, which is 20.18 kilonewton per meter. Horizontal component of T1 we can find by this T1 cos theta. So T1 is at 20.18 and theta is a 43.60, as we have find these details earlier. So here we can find out the W. So W will be a 14.61 kilonewton per meter, right? Total hoof tension in a ring beam we can find with this equation. Our equation is a W into D by 2. Here D is a 12 and W we have find 14.61. So we will put this all value and we will get a total hoof tension in a ring beam is a 87.66 kilonewton. Now we will find the steel required for a hoop tension. So we have an equation for that. Equation is a T upon sigma st. Here sigma st is a 130 Newton per mm square, because we are using M30 grade of concrete, and we will put the value of T in this equation, and we will have a steel required for a hoop tension is a 674.30 mm square, right? Steel required for a hoop tension we will find, we will put a value of hoop tension 87.66 into 10 raised to 3 upon 130. 130 is a permissible stress in a steel, so our AST will be a 674.30 mm square. Right now we will provide this AST in a beam. So provide 6 numbers of 12 mm dia bars. We have taken this value from a SP16. So our provided AST will be a 678 mm square. Now let the width of a beam 250 mm. So we will assume a width of the beam here, and here we have assumed width of the beam is a 250 mm, right? So transform area of a section. So first of all we will find out this area, transform area of a section, right? So what is transform area? So we can calculate this transform area with this equation, AG plus M minus 1 into AST. Here AG is a gross area. M we can find out from this equation. M is a modular ratio, which we can find this equation from page number 80, IS 456-2000. So equation for the M is a 280 divided by 3 sigma CBC, right? So what is 280? What is sigma CBC? Sigma CBC we have found it earlier, that is 8.10, right? So we will put the value of sigma CBC in this equation, and we will have M 9.33. right? So we will put all this value in this equation, and we will have 80 is a transform area of this section. So we will have 80 in a form of D, because we don't know the value of capital D here. So D is a 250 plus 250D plus 5647.74. Here we get this value of 80. Now tensile stress in a concrete should be less than 1.5 Newton per mm square. So we will put all the value from this table number 3.4, M30 concrete, right? So we will have this value 1.5 Newton per mm square should be less than tensile stress in a concrete. So we will put in this equation. So tensile stress in a concrete is 87.66 into 10 raised to 3 divided by 250D plus 5647.74 should be less than 1.5. So we will have these values. So D should be less than 87.66. After solving this equation we will have a D. So we will provide a depth of a beam 300 mm. हमें यहाँ पे 287.66 से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, राइट?
इससे लेस देन नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे बी डेप्थ ऑफ द बीम भी प्रोवाइड कर दिया, वो हम लोगों ने लिया 300 mm। सो we have taken a size of the beam 250 mm by 300 mm. Now we will provide a minimum shear reinforcement. So for provision of a minimum shear reinforcement, first of all we will assume 8 mm dia at two-legged vertical stirrups. So for a 8 mm dia two-legged vertical stirrups, what would be a ASV? ASV मतलब कि area of a shear reinforcement in a vertical stirrups. So we will have a 2 into pi by 4 into d square. D we will take 8 mm because we have a diameter of this bar is 8. So area of the steel in a vertical stirrups will be 100.53 mm square. Now SV equation for the SV we will have from a page number 48 IS 456-2000। हम लोगों ने ऑलरेडी ये shear reinforcement वाला चैप्टर पढ़ लिया है। ESD में आप एलिमेंटरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन आगे पढ़ चुके हो, जिसमें आप ये डिज़ाइन ऑफ shear reinforcement करते हो। सो ये सेम प्रोसीजर रहेगी यहाँ पे भी। सो equation for the SV will be a 0.87 Fy ASV upon 0.4 B. So Fy will be 415 and area of the steel in a vertical stirrups is 100.53 mm square. B is a 250. SV will be a 362.96 mm, right? So आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो जिसमें आप हम लोगों ने जो डायमेंशन अभी फाइंड आउट किए वो शो किए हैं। ये R हमारे पास 8.7 था। आगे वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था। डायामीटर 12 है, H1 2.4 है। हम लोगों ने यहाँ पे 8 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज पे प्रोवाइड किया है। यहाँ पे थिकनेस 100 mm है। ये बीम है, ये बीम जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बीम है जिसका डेप्थ है 300 और विथ है 250। बीम के अंदर हम लोगों ने 12 डाया, 6 नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। स्पेसिंग लिमिट्स हम लोगों ने जो आगे SV देखा था। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमें 3 में से जो मिनिमम है वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आगे जो फाइंड आउट किया था उसमें हमें SV 362.96 मिला था और 0.75 D वो कितना है 225 mm मिल रहा है और 300 mm। सो ये 3 वैल्यूज़ है, उसमें से जो कम होता है हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। सो ऑब्वियसली ये 225 mm कम है। सो वी विल प्रोवाइड ए 225 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो वी विल प्रोवाइड 8 mm डाया stirrups at a 225 mm सेंटर टू सेंटर, राइट। सो ये हो गया बीम की डिज़ाइन। अब हम लोग टैंक वॉल की डिज़ाइन करेंगे। सो डिज़ाइन ऑफ अ टैंक वॉल। सो डेप्थ ऑफ द वाटर इन अ टैंक कितना है 4 मीटर है, ठीक है, और डायमीटर ऑफ द टैंक है हमारे पास 12 मीटर। सो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हुक टेंशन एट द बेस ऑफ अ वॉल ड्यू टू वाटर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारा परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, पेज नंबर 3.3 में से। अब हम लोग टी का इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास ये हुक टेंशन का इक्वेशन है गैमा W इंटू H इंटू D अपॉन 2, राइट। सो ये इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो गैमा W है 10, H की जगह पे हम लोग H ही रखेंगे और D है 12, राइट। सो हमारा टेंशन कितना आ जाएगा 60 H किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील भी हमें H के फॉर्म में ही मिलेगा बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ H राइट नाउ। सो वी विल पुट अ वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो T अपॉन सिग्मा ST। So sigma ST is a 130 and T we have find this 60 into H. So we will have an area of the steel 461.54 H mm square. So अब हम लोग हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट हम लोगों ने जो प्रोवाइड किए हैं वो बताती हूँ मैं। सो द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइडेड एट अ वेरियस डेप्थ फ्रॉम टॉप इज टेबुलेटेड बिलो। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये 461.54 था और ईच फेस पे एरिया कितना प्रोवाइड किया था तो 230.76 रिक्वायर्ड था और हम लोगों ने प्रोवाइड कितना किया था। सो 8 डाया एट 210 mm सेंटर टू सेंटर। सो एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड कितना हो गया 239 mm स्क्वायर। दूसरा हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया था 10 डाया एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर, उसका एरिया ऑफ द स्टील कितना हो गया 462 mm स्क्वायर।
उसके बाद हम लोगों ने प्रोवाइड किया था 10 डाया एट 110 mm सेंटर टू सेंटर, सो उसका AST है प्रोवाइडेड 714 mm स्क्वायर। और लास्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किया था 4 मीटर डेप्थ पे 12 डाया एट 120 mm सेंटर टू सेंटर, सो एरिया ऑफ द स्टील है 942 mm स्क्वायर, राइट। सो मैक्सिमम होम टेंशन एट बेस एट हाइट 4 मीटर होगी तो उसका टेंशन कितना रहेगा, सो वो टेंशन रहेगा ये 240 किलो न्यूटन। अब हम लोग AT फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। AT क्या था, AT था एरिया ऑफ अ ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्म एरिया ऑफ अ सेक्शन, राइट। सो यहाँ पे AG 1000 इंटू टी आएगा, M-1 M हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 9.33। एरिया ऑफ दिस स्टील कितना रहेगा, सो 2 इंटू 942, मतलब कि हम लोग 4 मीटर पे 4 मीटर हाइट पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना प्रोवाइड किया था एरिया ऑफ द स्टील 942 प्रोवाइड किया था, ठीक है। वो ईच साइड पे, तो दोनों साइड का मिला के कितना हो गया, तो 2 इंटू 942। सो यहाँ पे हमें AT मिल रहा है 1000 इंटू टी प्लस 15693.72, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट शुड बी लेस देन 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, टेबल नंबर 3.4 M30 कॉन्क्रीट के लिए ये वैल्यू हमें मिली है। सो अगेन हम लोग ये टेंसाइल स्ट्रेस का इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे 240 इंटू 10⁻³ अपॉन ये ट्रांसफॉर्म एरिया आ जाएगा, सो वो है 1000 इंटू टी और प्लस 15693.72 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5। सो ये करने इसको सॉल्व करने से हमें टी की वैल्यू मिलेगी, टी की वैल्यू शुड बी लेस देन 144.30, बराबर, ठीक है। सो प्रोवाइडेड टी इज इक्वल टू 200 mm थिकनेस वॉल एट बेस एंड रिड्यूस इट एट 150 mm एट टॉप। सो हमारी एवरेज थिकनेस कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, सो हमारी एवरेज थिकनेस है 175 mm, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो वर्टिकल रेनफोर्समेंट कहाँ पे आएगा, सो बॉटम H/3 हाइट ऑफ वॉल इज डिज़ाइन एट्स अ कैंटिलीवर। सो नीचे की जो बॉटम की H/3 हाइट ऑफ द वॉल है वो कितनी है, सो वो हमें मिल रही है 1.3333 मीटर। कैसे, क्योंकि H है हमारा 4 और उसको 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो हमें 1.333 मिल गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैंटिलीवर मोमेंट। सो कैंटिलीवर मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है गैमा W इंटू H इंटू H स्क्वायर डिवाइड बाई 6। हियर स्मॉल h विल बी दिस, कैपिटल H इज 4, so we will put all value in this equation and cantilever moment will be 11.84 kilonewton into meter. अब हम लोग देखेंगे फॉर M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील सिग्मा CBC कितना आ रहा है, हमारा सिग्मा CBC आ रहा है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। सिग्मा SC आ रहा है हमारा 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्मॉल m हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया था, सो m की वैल्यू है 9.33। D की वैल्यू, D कितना है, सो 175 माइनस 50 हो जाएगा, 50 mm हम लोग यहाँ पे कवर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा स्मॉल d हो गया 125 mm। अब ये सारी वैल्यू के ऊपर से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो k का इक्वेशन हमें पता है m इंटू सिग्मा CBC अपॉन m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये इक्वेशन के अंदर हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमें k मिल जाएगा। सो k हमें कितना मिला, 0.418। अब हम लोग देखेंगे j। सो j का इक्वेशन है 1 माइनस k बाई 3। सो यहाँ पे हम लोग k की जो वैल्यू आगे फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे, सो हमें j की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ हमारा j हो रहा है 0.861। नाउ एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करना है, तो ये सारी वैल्यू जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट की है सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और हमें AST मिलेगा 846.24 mm स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ द स्टील का इक्वेशन हम लोग आगे देख चुके हैं कि ये कौन से पेज नंबर पे सारी डिटेल्स दी है, राइट। सारे इक्वेशंस आपको कोड में से मिल जाएंगे, वही आपको यूज़ करने हैं। अब मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, सो 0.24% ऑब्वियसली मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट है टैंक के अंदर। सो AST मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए 0.24 इंटू B इंटू डी डिवाइड बाई 100 करेंगे। सो यहाँ पे B है 1000 और ये DT हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 175। सो AST मिनिमम कितना होना चाहिए, 420 mm स्क्वायर,
ठीक है। सो ये मिनिमम क्राइटेरिया के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितना प्रोवाइड करेंगे 10 mm डाया एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। सो हमारा प्रोवाइडेड ASC कितना हो गया 524 mm स्क्वायर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अप टू 1.3 मीटर हाइट ऑन ए इनर फेस। So curtail alternate bars above a 1.3 meter heights. So on outer face provided 10 mm dia at a 300 mm center to center in a vertical direction. So ये तो हो गया वॉल की डिज़ाइन, राइट। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, स्लैब की डिज़ाइन करेंगे। सो अगेन स्लैब की डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है वो देख कैलकुलेट करेंगे। सो लोड फ्रॉम अ टॉप डॉम के ऊपर से लोड कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि T1 इंटू साइन थीटा इंटू 2π इंटू d/2। सो ये इक्वेशन के ऊपर से हमें टोटल लोड फ्रॉम अ डॉम मिलेगा। सो टोटल लोड फ्रॉम अ डॉम विल बी अ 524.64 किलो न्यूटन। सो वेट ऑफ अ रिंग बीम कितना होगा। सो रिंग बीम की हम लोगों ने जो एरिया कितना हो जाएगा, बीम कितना साइज़ का प्रोवाइड किया है 250/300 का। सो ये 0.25 इंटू 0.30 हो गया इंटू पाई इंटू 12 इंटू 25 क्या है डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट, ये थिकनेस है, ठीक है। सो ये हमें वेट ऑफ द रिंग मिल जाएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ द वॉल। सो वेट ऑफ द वॉल के लिए ये थिकनेस है 0.175 इंटू ये हाइट है टोटल, उसमें से हम लोग 0.3 माइनस कर लेंगे इंटू पाई इंटू ये 12.7125 इंटू 25। सो हमें वेट ऑफ द वॉल मिल जाएगा। सो वेट ऑफ द वॉल हमें मिल रहा है 619.15 किलो न्यूटन, राइट। अब हम लोग देखेंगे टोटल वेट। सो टोटल वेट ये जो बेस स्लैब हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर कितना आने वाला है। तो सबसे पहला लोड फ्रॉम अ डॉम कितना हो गया था 524.64। वेट ऑफ अ रिंग बीम कितना हो गया था 70.68। वेट ऑफ अ वॉल कितना हो गया था तो 619.15 किलो न्यूटन। सो टोटल वेट हमारा हो रहा है 1214.47 किलो न्यूटन, ठीक है। सो ये टोटल वेट ये हो गया लोड। अब हम लोग देखेंगे वेट ऑफ द वाटर कितना आएगा। सो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं π/4 इंटू d² इंटू h इंटू γ w, राइट। सो डायमीटर ऑफ द टैंक कितना हमने लिया है 12 और हाइट ऑफ द टैंक कितनी है 4, γ w कितना होता है 10। सो टोटल वेट ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा 4523.90 किलो न्यूटन। नाउ वी विल अज्यूम द स्लैब थिकनेस। सो स्लैब थिकनेस T इज इक्वल टू d/35। सो d/35 हमें कितना मिल रहा है 0.342 मीटर। सो हम लोग 350 mm जितना प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी विल प्रोवाइड 350 mm। सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब कितना होगा, तो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब के लिए ये हम लोगों ने जो थिकनेस प्रोवाइड की है उसके साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे थिकनेस है 350 mm हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। सो मल्टीप्लाई बाय विथ 25। सो हमें सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब मिल रहा है 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग स्लैब डायामीटर देखेंगे। तो 12 mm डाया हमारी ओके। सो 12 क्या है हमारा डायामीटर ऑफ ए स्लैब है, ठीक है। और उसके साथ हम लोग 2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2 क्या है थिकनेस हम लोगों ने जो आगे फाइंड आउट की थी। सो स्लैब डायामीटर हमारा हो जाएगा 12.4 मीटर। टोटल वेट ऑफ द स्लैब, नाउ वी विल फाइंड अ टोटल वेट ऑफ द स्लैब। सो π/4 d² इंटू सेल्फ वेट ऑफ अ स्लैब, राइट। सो π/4 इंटू d² क्या है एरिया ऑफ दिस टैंक पर्टिकुलरली स्लैब। सो π/4 इंटू डी हम लोग ये 12.4 लेंगे क्योंकि स्लैब का डायमीटर 12.4 है और सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब कितना हो रहा है 8.75, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल वेट ऑफ द स्लैब हमें मिल रहा है 1056.67 किलो न्यूटन। नाउ वी विल फाइंड अ फिनिशिंग लोड। सो फॉर फिनिशिंग लोड हमारे पास इक्वेशन है π/4 इंटू d² इंटू ये 0.6 क्या है। सो हम लोगों ने जो फिनिशिंग होता है वो 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम किया है, ठीक है। सो ये π/4 इंटू d² इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें टैंक की फिनिशिंग लोड पता चलेगा। सो वो होगा 67.85 किलो न्यूटन। अब हमारा टोटल लोड ऑन अ स्लैब कितना आएगा। सो टोटल लोड हम लोगों ने आगे जो फाइंड आउट किया था वो 4523 इंटू 90 था, प्लस ये 1056.67 किलो न्यूटन प्लस ये फिनिशिंग लोड। तो टोटल लोड ऑन अ स्लैब हो जाएगा ये
5648.42 किलो न्यूटन। अब टोटल अपवर्ड फोर्स फ्रॉम अ रिंग कितना आएगा? सो ये इतना तो आएगा ही, ये 1214.47 ये हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया था, प्लस ये जो टोटल लोड ऑन अ स्लैब है। सो टोटल अपवर्ड रिंग कितना आएगा? 6863 किलो न्यूटन। मैं फिगर दिखाती हूँ एक। ये जो फिगर है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट लोड मतलब कि ये वॉल का डॉम का जो लोड आ रहा है वो डॉम का लोड कितना था? 1214.47 किलो न्यूटन। ये यूडीएल आ रहा है वो क्या है? 5648.42। और ये है अपवर्ड फोर्स, राइट, वो है 6863 जो आगे कैलकुलेट किया हम लोगों ने। और ये हमारा स्लैब की ये डायमीटर है 12.2 मीटर। ये आपको लोडिंग ऑन अ बेस स्लैब बता रहा है, ठीक है। सो हमें दो टाइप के केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला केस कंसीडर करेंगे, सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट आउटर पेरिफेरी बाय अ वॉल्स एंड सब्जेक्टेड टू अ वाटर प्रेशर प्लस अ सेल्फ वेट ऑफ अ स्लैब, ठीक है। सो ये केस 1 है। और केस 2 क्या है? सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट आउटर पेरिफेरी बाय वॉल्स एंड सब्जेक्टेड टू अपवर्ड रिंग लोड, ठीक है। सो हमें ये दो केसेस के हिसाब से मोमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और हम लोग क्या करेंगे? एएसटी प्रोवाइड करेंगे, तब हमारी बेस स्लैब की डिज़ाइन कंप्लीट होगी, ठीक है। सो हम लोग ये जो केस 1 एंड केस 2 का जो लोडिंग कैलकुलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया? आपको डिज़ाइन करवाई है बीम की, और उसके बाद हम लोगों ने बेस स्लैब स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हो, गूगल मीटिंग पे भी पूछ सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है यहाँ तक, ठीक है एवरीवन। थैंक यू सो मच।